नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर, पेश करूंगा आपके सामने ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। How can I help you? Okay. Like I said, at the same time, I don't want to go, but then at the same time, I have to go. I need to go because of my health. My health is deteriorating day by day because of this problem, because of the way he makes me feel, because, like I said, if it's day, I say day. If it's night, night. I listen to him. I'm an obedient wife, and still, everything's puzzling me in my head that why doesn't he love me? Why is he doing this? And then at the same time, I don't want the marriage to be over. And at the same time, I can't take this because I can't live in pain like this. So I just want to know what's going to happen in the near future. Is it going to be over? Because I can't live like this. As much as I want to live here, I can't live like this because of my health and my two children. Okay. From the last 4 years, what you're going through, you have to sort yourself out within sooner or later. Otherwise, next 6 years will be very tough, very demanding. At the same time, you got to make sure that end of the day, you have to survive as a human being, as a lady, as a person, as a human, and you have to be mentally, physically, emotionally fit and normal. You got to make sure that. What I'm asking is, what's going to happen? Like, is the marriage going to be over? Am I going to be living like this, just die in this house? Okay, at the moment you are in the middle of a living conflict. You are in the middle of a living conflict. Either both parties come together and resolve the issue, or both parties can be living in a superficial state of mind. A marriage could be defined when husband and wife support each other, look after each other, taking care of each other, respect each other, honor each other. If that is not there, then it's just like a name, just married. Yes. What is there then? Can I just say something? Yeah. That's what I'm trying to tell you. Where is the honor? Where is the care? Where is the love? Where is the affection? There's nothing there. Yeah, but how would you define the marriage? It's just in the name. No, you can't. How can you? That name will not take you anywhere. Practicality. When we're chewing something, we have something in the mouth. If I'm chewing like this, I'm nothing in my mouth. Well, what I'm doing that? Can Where I is that? say something? Yes. You know, when you said resolve the issue, there is no issue because I have tried talking to him. A lot of the times I have told him how I feel. He doesn't care. He goes, if you want to go, you can go. I'm not going to change. By the end of the day, where you want to be next 5 years? Have you thought about it mentally, I don't want to physically? die because my children are really upset by this. Yeah, but at the end of the day, you can't dissolve in this whole thing. You can't dissolve. Obviously, I know what to do. Yeah. I know what to do, but I'm confused. But the reason I called you is because if you can help me, is this marriage going to be over, or am I going to be living like this This and marriage, then just die in this house in the next 5 years? This marriage is based on your tolerance, patience, and that's it. This marriage, how far you can tolerate, how much patience you have. I have tolerated it for 26 years. That's it then. More you cultivate your tolerance, more you cultivate your patience, this marriage will carry on with that. But what you're expecting from the marriage, I am sorry, I don't think so anything is there. What you're expecting, how satisfied, content as a wife you are, how happy you are as a woman, how harmonious you have a family life, what sort of self-contentment you have, where you're going to see yourself regarding your brilliance, regarding your happy, feeling good factor in the relationship, how secure you are in the relationship, what sort of future you have regarding certainty. Okay, if you're going to lying down on the floor or on the bed,
Is somebody is there to taking care of you, look after you? No, I'm sure you know that. No, I know that, but I want to ask you, can you answer these questions? If that person can take care of you, honor you, look after you, support you thick and thin, then fine. No, if that is not the, if you have the answer, no, 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 then more is just like the whole thing is empty. You are carrying on only due to your ego or pride or honor. I know all this. This is the whole reason why I phoned you, so that But- you can actually help me. But is this marriage is based on your patience. The lose is nothing. There's no. This is one-way traffic. You're putting in. Carry on putting in. No problem. But don't expect anything back. That's it. That is my answer. जी मेरा आंसर जो है वो ये है कि आप उसमें जो मर्जी डालती जाएं, आप उसमें सारी ज़िंदगी डालती जाएं, आप उसमें पेशेंस डालती जाएं, आप अपना पूरा सब कुछ डाल दें, लेकिन वहाँ से कुछ एक्सपेक्ट मत करें जो आप एक्सपेक्ट मैंने करती। सब कुछ डाला है। मैंने हाँ, सब डालते कुछ जाएं। अभी वो मैं आप नहीं पिछले कर 25 सकती साल से हूँ। डालते जाएं, नेक्स्ट 25 ईयर भी डालते जाएं, वो जो आप एक्सपेक्ट करती हैं वो वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। सॉरी। हाँ, ये तो मुझे पता है, because I've been trying to make it work for 26 years. पर मुझे ये पूछना है कि is this marriage going to be over or is it going to carry on like this? ये मैरिज आपकी पेशेंस के ऊपर टिकी हुई है। जब आपकी पेशेंस आपकी खत्म हो जाएगी उसी दिन ही उसी at the same second it will finished. Because can I say something? This year has been ever so bad for me. I've had an attack where I had to go to hospital. I've got cardiology problem. My depression has gone so severe. I'm getting so many other illnesses because 24/7 मैं sad रहती हूँ, मैं रोती रहती हूँ। मेरी daughter भी, उसको भी, I seen her cry yesterday because she said, "Mom, you're in pain." And I just want to know that what is going to next year going to bring for me? Am I going to be dead next year? Next year will bring on your decision. आपको एक्शन लेना होगा। अगर आप बैठे रहेंगी और सिर्फ आसमान की तरफ देखती रहेंगी, वहां से तो कुछ नहीं आने वाला। मैं चाहती भी हूँ, at the same time I don't want to go, but at the same time I need to go because of my health. But I want to know, is it going to happen? Happen what? That the marriage is going to be over. Am I going to go from here, or we still going to be together? फरीदा, you're an educated woman. मैंने ये कहा कि ये मैरिज आपकी पेशेंस पे टिकी हुई है। जी, मुझे ये पता है। हाँ, ये मैरिज आप जिस दिन आपकी पेशेंस ड्रॉप हो जाएगी, मैरिज खत्म हो जाएगी। पहले दिन से मैरिज आपकी पेशेंस और टॉलरेंस में थी। आप उसको ये कब होगा? ये कब होगा? ये 3 साल से ऐसे मेरे। तो जब आप चाहेंगे कि मुझे ये जिंदगी, मुझे इससे बेटर चाहिए, मुझे ऐसी जिंदगी से कुछ मिलने वाला नहीं। I've been longing for that. At the same time, I've been longing for this My whole dear year, but lady, it hasn't happened for me. Because every decision- time I do think that I need to go, an obstacle comes in the way. देन ये डिसीजन आप जब मर्जी बनाइए, आपके ऊपर है। और यहाँ से आप ये जो तवक्को आपकी है कि यहाँ से ये मिल जाएगा, यहाँ से वो मिल जाएगा, मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होने वाला है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो तवक्को आप छोड़ें प्लीज़। एंड ऑफ द डे जो पिछले 5 साल से हुआ है आपके साथ, जब पिछले 4 साल से जो चल रहा है, उसमें कोई पॉजिटिव बात हुई है मैरिज में? कुछ भी नहीं। मुझे बताइए ना। 48 महीने, एक जो साल है 365 डेज है, पिछले 2000 डेज से क्या अच्छा हुआ है बोलिए? कुछ भी नहीं। हाँ, जवाब आपने दे दिया। वो आप खुशफहमियां छोड़ें प्लीज। अगर आपने बीमार नहीं होना, अगर आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहती हैं, तो अपना डिसीजन वो बनाइए जो एक फैमिली के लिए अच्छा होना चाहिए, कि बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, बच्चों की ब्रिंगिंग अप कैसी होगी। एज ए पेरेंट, बच्चों का जो चाइल्डहुड होती है वो एक बहुत बड़ा प्रेशियस गिफ्ट होता है जो माँ बाप बच्चों को देते हैं। हाँ, बच्चों को बैड मेमोरीज ना दें, बच्चों की यादें ठीक रखें, उनकी स्टेबिलिटी चाहिए, उनको रोती बिलकती बीमार माँ नहीं चाहिए, उनको हंसती खेलती माँ चाहिए। आपको देखिए, ये आपके ऊपर है, आपके बेस के ऊपर है। आप या तो है कि आप उस बात पे तवक्को ही ना रखें जी मुझे इससे कुछ मिलेगा, तो उसमें जैसे अपने आप को जैसे कोई शहीद की तरह आप पेश कर दें कि जी मैंने सारा कुछ कुर्बान ही करना है, ठीक है जी आ गई हूँ, बस कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हैं आप, तो वो ठीक है, वो चलती रहेगी। लेकिन जिस दिन आप ये एक्सपेक्ट करेंगे, मैं एक्सपेक्ट भी करती हूँ कि मेरा खाविंद ऐसा हो, वहाँ तो बड़ी ड्यूटीज़ बताई गई हैं कि जी मेरी ड्यूटी ये है, तेरी ड्यूटी ये है, वहाँ तो पूरा एक लिस्ट है
कि मैं आपको लुक आफ्टर करूंगा, आपको प्रोटेक्ट करूंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा, आपके लिए ये करूंगा, आप वहाँ तो पूरा दिया गया जी, ठीक है ना। दीन में तो बड़ा कुछ लिखा गया है और पूरी तरह डिफाइन किया गया बड़े एक बहुत ही पाक तरीके के साथ। तो वो देखिए कौन क्या निभा रहा है, क्या नहीं निभा रहा है। एंड ऑफ द डे वो आपके ऊपर है, सिंपल एज दैट। तो आप मुझे ऐसे लगता है कि आप मुझे नहीं बताना चाहते कि बिकॉज दिस इज द होल रीजन। देखिए फरीदा, जी, ये लाइफ किसकी है? आपकी है। मैरिज किसकी है? आपकी है। वो मैंने आपको हाँ, मैंने आपको डिसीजन किसने बनाना है? आपने बनाना है। मैंने आपको केस सामने खड़ा किया, आपके जो है मैंने बता दिया आपको। उसको अगर आप उसको देख के भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, फिर वो आपके ऊपर है। एंड ऑफ द डे दिस इज योर लाइफ, योर डिसीजन। Yes, I know. कोई I'm आपका aware डिसीजन of नहीं, that. आपका कोई डिसीजन नहीं बनाएगा। आपका डिसीजन आपको खुद बनाना होगा। नहीं, ये मुझे पता है, आप नहीं सुन रहे हैं। मैं ये खाली जानना चाहती हूँ कि is it gonna happen? हैपन व्हाट? My marriage is gonna be over. जब आपकी जिस दिन आप अपनी पेशेंस छोड़ देंगी, मैरिज खत्म हो जाएगी। आज But ये is it gonna happen though next year? Is it gonna happen जिस next दिन year? आप कहेंगे कि जिस दिन आप थक के गिर जाएंगी, टूट जाएंगे, मैरिज खत्म हो गई। ये आप ही तो आप लेके मुझे अभी भी नहीं बता रहे हैं। Is it gonna happen next year? Can you have a look at me for my पिछले next year? जिस मैंने कहा इट कैन हैपन टुडे। आपका डिसीजन है, वो आपको अंदर से बनाना है कि ये मेरे को नहीं चाहिए भाई। दैट्स इट। वो डिसीजन आपने बनाना है। आपने डिसीजन आप बनाना है ना, वो तो आपने करना है। उसको आप दूसरे से क्यों पूछ रहे हैं? ये तो पिछले कई सालों से ये जैसे एक कब्र को लेके बैठे हुए हैं हम। वो सोच रहे हैं जिंदा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। अब क्या बात कर रहे हैं? कम ऑन। And he's never gonna change. भाई मैं यहाँ लोगों को खुशफहमियाँ नहीं बांटता हूँ, मैं सच बोल देता हूँ। और सभी को मैंने उसको आपको मैंने ये पूछा कि पिछले 2000 दिन गिनो, 2000 डेज गिनो। 2000 डेज से क्या आप कितना खुश हैं? बोलिए आप। बिल्कुल नहीं। हाँ, देख लीजिए 2000 डेज का रिकॉर्ड लाइए, पिछले 2000 दिन में देखिए कि हर रोज आप जिए हैं और इससे क्या मिला है आपको, बता दीजिए। वो एक पूरा चार्ट है, उस पर निकाल लीजिए। वो आप एंड ऑफ द डे वो जो पूरा 2000 डे का एनालिसिस कर लीजिए कि भाई ये यहाँ से कुछ उगने वाला नहीं है, बस ठीक है, छोड़ दीजिए। आपको एंड ऑफ द डिसीजन आपका है। आप एक लेडी हैं, ये डिसीजन आपका ही होना चाहिए। और एक और बात के, अगर मैं एक ओबीडियंट गुड वाइफ हूँ, मैं कुछ भी उसके फ्रॉम आई डोंट एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम हिम, व्हाई डज ही बिहेव लाइक दिस टुवर्ड्स मी? ये जवाब उनको ही देना होगा, ये जवाब उन्हीं को देना चाहिए। ओके, आपके पास उसके पास तो कोई जवाब नहीं है। मैंने कितनी बार उसको पूछा कि क्यों मुझे मोहब्बत नहीं करते। मैं आपकी सारी बात सुनती हूँ, you know, I do everything as you say, I don't expect nothing from you, so ये जवाब तो मुझे कुछ भी नहीं बताते। नहीं, वो ये जवाब उन्हीं को देना होगा, उन्हीं से बात करनी होगी, उन्हीं को ये जवाब उनका बनता है। Okay, then can you just tell me what next year, how is next year going to be for me? Because this year has been really, really bad for me. Can you please look up on my chart and just tell me, like, okay, how is next year going to be? Is it going to be a bit better for me than this year? जो आने वाले 12 महीने हैं, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए बहुत मेरे ज़्यादा। हेल्थ में तो बहुत इश्यू है, बहुत प्रॉब्लम है। आपको अपनी लेडीज हेल्थ का ध्यान रखना होगा और अपना बहुत ख्याल रखें प्लीज़। अपने डॉक्टर साहब से चेकअप करवाते रहें, अपने वेट, अपने आप को संभाल के रखें प्लीज़। मैं इतनी बीमार रहती हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतनी बीमारी है। और बीमारी होती रहती है डिफरेंट, मुझे ये भी पता नहीं है ये क्यों मेरे साथ हो रहा है। अभी जो टाइम चल रहा है, आने वाले 12 महीनों में अपने आप को वाइंड अप ना करें, आपकी बीमारी बढ़ सकती है मेंटली तौर ऑलरेडी इट्स गेटिंग इंक्रीजिंग। क्योंकि आने वाले 12 महीने जहनी तौर पे बहुत आपको सुकून से रहना है। प्लीज़ बैलेंस रखें अपने आप को, नहीं तो आपकी बीमारी है उससे बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा, आपके ऊपर असर पड़ेगा।
जहनी तौर पे अगर आप ज़्यादा चाबी चढ़ गई आपको, आपका पूरा असर आपकी बॉडी पे आ जाएगा उसका। प्लीज़ जितना आप इस समय अपनी लेडीज़ हेल्थ का, इसमें अपनी जहनी तौर पे जो आपने आपको बैलेंस रखें, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाते रहे, जो मेडिकेशन सपोर्ट है मिलती रहे, लेकिन आपका भी अपने आप में पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस समय बहुत ज़रूरी है प्लीज़। नहीं तो आपका इसका पूरा असर, क्योंकि अब ये आपको पूरा असर आपकी सेहत के ऊपर आ जाएगा और वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। तो ये इसमें आपको आने वाले 12 महीने सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं है, नो। लेकिन इन आने वाले 12 महीने में ये भी है कि थोड़ा अगर आप एफर्ट डालें तो थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करें, पॉजिटिव सोचें, और तब आपकी कोई जो आपकी एफर्ट होगी उसमें कामयाबी मिल सकती है। लेकिन जहनी तौर पे आने वाला 1 साल तकलीफ देने वाला है, परेशानियां देने वाला है। अभी भी तकलीफ देना, अभी भी तो मेरे ये साल तो बहुत बुरा गया। लेकिन उसमें आपको अपने आप को बैलेंस करना है। आज के साथ इतना ही, चलता हूँ, लौट के मिलूंगा बहुत जल्द, लेकिन टेलीफोन लाइन अभी भी खुली है, आप फ़ोन उठा के बात कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले हफ्ते सेम टाइम। लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।